بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ہفتوں کے بعد رمضان کریم شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور اس رمضان کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مذہبی اور خیراتی اداروں کے لیے مالیاتی انتظام کا سوال نامہ۔ چونکہ اب مدارس کے لیے رجسٹریشن ہو چکی ہے کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹر ہونا ضروری ہے، اسی حوالے سے اب دیگر رفاہی اداروں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مالیاتی انتظام کے حوالے سے کچھ اہتمام کریں تاکہ مستقبل کی مشکلات سے بچ سکیں۔ پاکستان میں خیرات کا مجموعی حجم 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق جو انٹرنیٹ پہ میسر ہیں 619 ارب روپے یعنی 619 بلین روپیز کی خیرات ہے۔ بالفاظ دیگر 61,900 کروڑ روپے کی خیرات ہے۔ 98% پاکستانی کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ کارپوریٹ خیرات اب 25 بلین کی ہو چکی ہے۔ یہ چیزیں اور یہ خیرات جو ہے وہ کہاں خرچ ہوتی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لوگ انفرادی طور سے بھی دیتے ہیں، لوگ جو ہیں اداروں کو بھی دیتے ہیں، لوگ جو ہیں معاشرتی فلاح بہبود کے لیے بھی دیتے ہیں۔ مختلف کیٹیگریز ہیں، بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں مالیاتی اہتمام و انتظام کے حوالے سے۔ یہ جامع سوال نامہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں کام کرنے والے خیراتی اداروں، تنظیموں، این جی اوز، مدارس اور مساجد کے مالی انتظام کے طریقوں کو جائزہ لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم کوئی رپورٹ تیار نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ جو لوگ ان اداروں کے ساتھ منسلک ہیں ان کی کسی حد تک رہنمائی ہو جائے اور وہ اپنے فیصلے خود کریں اور اپنے مشیروں سے بات چیت کریں۔ جمع کی گئی معلومات ان اداروں کے مالیاتی اسٹیورڈ کے لیے اہم چیلنجوں اور تربیتی ضروریات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرے گا۔ اب ہم تو جمع نہیں کر رہے، لیکن مستقبل میں لوگ جمع کریں گے۔ بنیادی معلومات کے متعلق 4 سوالات ہیں۔ آپ کس قسم کے ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں؟ خیراتی ادارہ، این جی او، مذہبی مدرسہ، مسجد یا دیگر؟ آپ کا ادارہ بنیادی طور پر کس ملک میں کام کر رہا ہے؟ آپ کا ادارہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے؟ آپ کے ادارے کا تخمینہ سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ اب آئیے مالیاتی حکمرانی یا مالیاتی معاملات کے حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ کے ادارے کے پاس باضابطہ مالیاتی کمیٹی یا نامزد مالیاتی افسر یا کوئی ذمہ دار فرد ہے؟ اگر ہاں تو ان کی قابلیت کیا ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کی ادارے کے کسی ذمہ دار فرد سے رشتہ داری ہے؟ عام طور سے خاندانی کے لوگ ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں، بھانجا بھتیجا، داماد بہنوئی، اسی انداز سے یہ معاملات ہوتے ہیں، اور آپ اگر جائزہ لیں گے تو کئی اداروں میں آپ اس صورتحال کو دیکھیں گے۔ آپ کی انتظامی کمیٹی کتنی بار مالیاتی رپورٹوں کا جائزہ لیتی ہے؟ یعنی سال میں کتنی بار جائزہ لیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے مالیاتی پالیسیاں اور طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر نہیں لکھے ہوئے ہیں تو کب تک آپ کو لکھنا ہے؟ اگر ہاں تو انہیں آخری بار کب اپ ڈیٹ کیا گیا تھا؟ مختلف حد کی سطحوں پر اخراجات کی منظوری کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یعنی اتھارٹی اینڈ اپروول گریڈ یا میٹرکس جو ہوتی ہے کہ کون فرد کس حد تک سائن کر سکتا ہے، اور اس حد سے زیادہ ہو گئے تو کتنے دستخط ضروری ہیں۔ منظوری کے احکام اور مالیاتی جائزے کے نظام الاوقات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ایک سادہ مالیاتی دستاویز بنانے کی کوشش کریں۔ مالی لین دین کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟
दस्ती लेजर, कैश बुक, स्प्रेडशीट या कोई सॉफ्टवेयर। और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो बराए करम उसकी वजाहत करें, या और कोई सिस्टम है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं। माली लेन देन कितनी बाकायदगी से रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्या ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं, या दिन में एक बार रिकॉर्ड किए जाते हैं, या आपने कोई फर्द नामजद किया है जो फौरी तौर से ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर लेता है? क्या आप मुख्तलिफ मंसूबों या अतियात के जुमरों के लिए अलग रिकॉर्ड रखते हैं? आप इन किस्म के अतियात को कैसे रिकॉर्ड और ट्रैक करते हैं? क्या आप अपने मालियाती रिकॉर्ड को बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलाते हैं, जिसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं? ये महीने में कितनी बार आप करते हैं? नंबर 3, बैंक और कैश मैनेजमेंट। क्या आपके इदारे के पास एक मखसूस बैंक अकाउंट है? आपका इदारा कितने बैंक खाते रखता है और हर एक का मकसद क्या है? बैंक लेन देन के लिए दस्तखत करने का इख्तियार किसके पास है? नकद हैंडलिंग के लिए आपके पास कौन से कंट्रोल्स हैं? आप छोटी नकद रकम का इंतजाम कैसे करते हैं, यानी पेटी कैश पेमेंट कैसे करते हैं? क्या आपके पास कम अज कम या ज्यादा से ज्यादा नकद होल्डिंग के हवाले से कोई पॉलिसियां मौजूद हैं? आइए चौथे आइटम की तरफ आते हैं, आमदनी के जराए और इंतजाम। आपके इदारे के लिए आमदनी के बुनियादी जराए क्या हैं? बराए करम फीसद का तखमीना लगाएं, जैसे मकामी एहतियात, बैनुल अक़वामी एहतियात, सरकारी ग्रांट, सर्विस फी, सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी, दीगर रुकूमात। क्या आपके पास अतियात के माखज की तस्दीक और दस्तावेज करने का कोई निज़ाम मौजूद है? आप महदूद बमुकाबला गैर महदूद यानी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का इंतजाम कैसे करते हैं? क्या आप तमाम अतियात की रसीदें जारी करते हैं? अगर हाँ तो किस शक्ल में? क्या रसीदों की प्रिंटिंग और तकसीम और वापसी पर कंट्रोल और रिकॉर्ड मौजूद है? अतिया दहनगान के ताउन के लिए आप कौन से तरीके इख्तियार करते हैं? नकद, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन अदायगी वगैरह वगैरह। नंबर 5, अखराजात का इंतजाम और कंट्रोल। आपके अखराजात के अहम जुमरे कौन से हैं? बराए करम फीसद का तखमीना लगा लें। आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि अखराजात आपके इदारे के मिशन और अतिया दंगान की पाबंदियों के मुताबिक हों? अखराजात के लिए आपको किन दस्तावेजात की ज़रूरत होती है? क्या आपके पास अहम खरीदारियों के लिए खरीदारी का अमल तहरीरी सूरत में मौजूद है? आप हंगामी हालात या गैर मंसूबा बंद अखराजात को कैसे संभालते हैं? नंबर 6, बजट और मालियाती मंसूबा बंदी। क्या आपका इदारा सालाना बजट तैयार करता है? अगर हाँ तो बजट साजी के अमल में कौन अफराद शामिल होते हैं? आप अपने बजट के मुकाबले में असल आमदनी और अखराजात का कितनी बार मवाजना करते हैं, और मवाजने के बाद तज्जिया करते हैं, और तज्जिए के बाद जो है राह अमल इख्तियार करने की कोशिश करते हैं? आप बजट के अहम तगय्युरात यानी गैर मामूली फर्क को कैसे संभालते हैं? क्या आपके पास कोई तवील मुद्दती मालियाती मनसूबा बंदी या रिजर्व पॉलिसी है कि मुश्किल हालात में कैसे निपटा जाएगा, जैसे कोविड-19 के अंदर सूरत हाल पैदा हुई थी? मालियाती रिपोर्टिंग और शफाफियत, यह हमारा 7वां आइटम है। आप कौन सी मालियाती रिपोर्टें बाकायदगी से तैयार करते हैं? ये मालियाती रिपोर्टें किसको मिलती हैं? क्या आप अपने अतिया दनगान या कम्युनिटी के साथ माली मालूमात का इश्तराक करते हैं, यानी उनको शेयर करते हैं? अगर हाँ तो कैसे शेयर करते हैं? क्या आप कोई माली मालूमात अवामी तौर पर शाये करते हैं? अगर हाँ तो किस शक्ल में? आप कम्युनिटी के अराकीन के माली मामलात से मुतालिक सवालात या खदशात को कैसे हल करते हैं? इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इंसान शुबा करे, तो उसको निमटने के लिए शफाफियत का कौन सा तरीक़ाकार आपके पास मौजूद है? नंबर 8, तामील और रेगुलेटरी तकाज़े यानी कंप्लायंस।
क्या आपका इदारा कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है? अगर हाँ, तो किस कानून और ज़ाब्ते के तहत? क्या आप अपने मुल्क में अपने किस्म के इदारे के लिए मालियाती रिपोर्टिंग के तमाम तकाज़ों से वाकिफ़ हैं? क्या आप सरकारी हुकाम के पास मतलूबा मालियाती रिपोर्टें फ़ाइल करते हैं? अगर हाँ, तो कौन से? क्या आपको कभी तामील के किसी चैलेंज या जुर्माने का सामना करना पड़ा है? क्या आप अपने इदारे पर लागू टैक्स के मुज़मरात और छूट से वाकिफ़ हैं और समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, खासकर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह से टैक्स काटने का मामला, वेंडर्स की सप्लाई से उनकी अदायगियों से टैक्स का काटने का मामला, यानी वो अदायगियाँ जो आप करते हैं उसमें रियासत के नुमाइंदे की हैसियत से आपकी टैक्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है। अंदरूनी कंट्रोल और खतरात का मैनेजमेंट, यानी इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या आप माली कामों के लिए फराइज अलग करते हैं? क्या आप मुमकिन माली बदइंतजामी को रोकने का कोई तरीक़ाकार रखते हैं और इसका पता कैसे लगाते हैं? क्या आपके मालियाती रिकॉर्ड के लिए कोई ऑडिट का अमल है? अगर हाँ, तो कितनी बार? आपके इदारे के बारे में कौन से माली खतरात आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं? क्या आपके पास अपने असासों और सरगर्मियों के लिए तकाफुल की कवरेज मौजूद है? नंबर 10, मालियाती इंतज़ाम में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मालियाती इंतज़ाम के लिए आप फ़िलहाल कौन से टेक्नोलॉजी टूल्स इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल मालियाती टूल्स को अपनाने में आपके अहम चैलेंजेस क्या हैं? क्या आप डिजिटल ऑनलाइन नज़रियात कबूल करते हैं? अगर हाँ, तो किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मालियाती मालूमात के लिए डेटा की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाते हैं? अगर वसाइल दस्तयाब होते हैं, तो आप कौन सी मालियाती टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा नाफिज करना चाहेंगे? नंबर 11, ज़कात और मजहबी फंड का इंतज़ाम। क्या आपका इदारा ज़कात के फंड जमा और तकसीम करता है? आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि ज़कात इस्लामी उसूलों के मुताबिक तकसीम की जाए? मुख्तलिफ मजहबी मकासद के लिए फंड्स का इंतज़ाम कैसे करते हैं, जैसे सदका, फितराना, वक्फ वगैरह? आप मुख्तलिफ किस्म के मजहबी फंड्स के लिए अलग अलग खाते रखते हैं? मजहबी फंड्स को मुनासिब तरीके से संभालने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? नंबर 12, अफराद कार की तरबियत और सलाहियत की तरक्की के लिए कोशिशें। आपके अमले ने मालियाती इंतज़ाम की कौन सी तरबियत हासिल की है? आपके इदारे के मालियाती इंतज़ाम के इल्म में सबसे अहम फ़र्क क्या है? क्या आप ज़ाती तरबियत, ऑनलाइन कोर्सेज या तबादला शुदा गाइड्स को तरजीह देंगे? तरबियत के लिए माली इंतज़ाम के कौन से मौज़ूआत सबसे ज़्यादा कीमती होंगे? आपके इदारे में मालियाती इंतज़ाम को बेहतर बनाने में कौन से वसाइल आपकी मदद करेंगे? नंबर 13, बैनुल-अक़वामी फंड्स की मुंतकली और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आपका इदारा बैनुल-अक़वामी फंड वसूल करता है या भेजता है? क्या आप अपने मुल्क के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML के ज़वाबित से वाकिफ़ हैं? बड़े अख्तियार दहंगान की शनाख्त की तस्दीक के लिए आप कौन से तरीक़ेकार पर अमल करते हैं? क्या आपको बैनुल-अक़वामी फंड की मुंतकली में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बैनुल-अक़वामी लेन देन के लिए आप कौन सी दस्तावेज़ात रखते हैं? 14, मालियाती इस्तेहकाम। क्या आपके इदारे के पास मालियाती इस्तेहकाम का मंसूबा है? आपके ऑपरेटिंग अखराजात का कितना फीसद काबिल एतमाद, यानी बार बार आने वाली आमदनी के तहत आता है, यानी रिकरिंग इनकम, प्लेज्ड इनकम जो रेगुलरली आपके पास आती हो? क्या आपके पास अपने इदारे की मदद के लिए कोई आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियां मौजूद हैं? अगर अतियात अचानक कम हो जाए तो आपका इदारा कितने महीनों तक काम कर सकता है? मालियाती इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए आप किन हिकमत अमलियों पर गौर करते हैं? 15, इजाफी मालूमात। आपके इदारे को मालियाती इंतज़ाम के दीगर किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है जिनका इस सवालनामे में अहाता नहीं किया गया?
آپ کے ادارے نے کون سے کامیاب مالیاتی طریقوں کو نافذ کیا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کے ادارے کے لیے کون سی مخصوص مالیاتی انتظام کے وسائل سے زیادہ مددگار ثابت ہوں گے؟ آپ کا شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان سوالات کا خود بھی جواب دیں، اپنے احباب کو اور دیگر ان اداروں کو جو خیرات پہ چلتے ہیں ان کو شیئر کریں، اور اگر آپ ان کے منتظمین ہیں یا بورڈ کے ممبر ہیں تو اسے نافذ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں اور کوشش کریں کہ اس رمضان کریم سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ شکریہ۔ مکمل ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اتنی طویل گفتگو کے بعد اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تمام مکاتب فکر کے اجتماعی فورم اس حوالے سے مشترکہ اجلاس طلب کریں، تمام دینی مدارس کی آمدنی اور اخراجات، اثاثہ جات اور انسانی وسائل کے لیے ضابطہ بنائیں، دینی مدارس سے وابستہ ذاتی مفادات کے لیے بھی کوئی ضابطۂ اخلاق بنائیں، ملکی پیمانے پر مدارس کے لیے حسابات رکھنے کے لیے کوئی اپلیکیشن بنائیں یا کسی سافٹ ویئر کا ارینجمنٹ کریں، ان تمام معاملات کے لیے تربیتی نظام بنائیں اور مختلف ویڈیوز بنا کر تمام دینی مدارس سے وابستہ افراد کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ مکمل ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، بشیر جمعہ کر کے تلاش کی جا سکتی ہے۔